Hello guys and welcome to Manual Education. This is Tapasya Marathe and today I will be sharing with you my experience with MH Law CET and how I got into Government Law College, my dream college. So let us begin with it. So before the preparation part and etc., you first need to have clarity about why you want to study law. Do you really want to study law, and which college do you want to get in and why? Okay, whenever you have an aim, that aim has to be backed by reason. अगर aim के पीछे reason नहीं है तो you will never be determined, या वो passion, वो will power आपके अंदर से नहीं आएगा. So before everything, get a clarity कि ये क्यों करना है and exactly कौन सा college आपको choose करना है. Do you want to get into NLUs, do you want to get into ILS, do you want to get into GLC? ये clarity आपको होनी ज़रूरी है. Okay, after that once you have cleared your thoughts, once you are sure about what exactly you want, after that the next thing that is essential is real willpower. देखो, चाहिए तो हमें बहुत कुछ रहता है, but do you really want to get it? Are you really ready to get it? So that is called willpower. Where there's a will, there's a way. If you are really willing to do it, you should be prepared to do what it takes for it. ठीक है? It is not easy to get into these colleges. It is not easy to get high marks in MH Law CET, right? So ये clarity होना और उसके बाद ये will होना is necessary. I personally created a vision board. मेरे घर में एक बोर्ड था, उस पर I printed a photo of Government Law College and वहाँ के professors या Government Law College की team का website से I printed the photo and I pasted it there. So सुबह शाम that is what I used to see. ठीक है, तो वो जब हम देखते हैं ना तो वो ऐसा होता है कि हाँ this is it, वो ड्रीम अपनी हटती नहीं है. सो यू कैन ऑल्सो डू इट. इट इज़ नॉट एसेंशियल कि आपके पास कोई बोर्ड ही होना चाहिए वगैरह या प्रिंट आउट ही लेना चाहिए. यू कैन सिंपली राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट आई विल गेट इन टू GLC. ये भी मैंने किया था. आई डिड दिस एज वेल. मैंने पेपर पे लिखा था इन कैपिटल लेटर्स आई विल गेट इन टू GLC एंड वो मैंने वहाँ पे स्टिक किया था अलॉन्ग विद द फोटो. तो ये जब आप विजन बोर्ड बना देते हो तो यू डोंट लेट योर सेल्फ फॉरगेट what you are aiming at. ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देर आर मेनी थिंग्स इन टूडेज वर्ल्ड, राइट. सोशल मीडिया है, बहुत चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है. सो व्हेन यू मेक दिस विजन बोर्ड यू प्रिंट इट समवेयर जहाँ पे आपको दिखे. ठीक है, बोर्ड होना ज़रूरी नहीं है. आपने आपके कबर्ड पे लगा दिया, आपने आपके स्टडी टेबल पे लगा दिया या सिंपली दीवार पे भी लगा दिया ना, इट इज़ ओके. बट समवेयर दैट यू कैन सी अगेन एंड अगेन. Wherever you sit to study, वहाँ पे वो दिखना चाहिए. That will remind you of your goal and that will motivate you to go towards it. That will motivate you to study. Whenever you are tired and you feel like giving up, that is what will motivate you. तो ये भी मैंने किया था because I really wanted to get into the college. After all of this, what remains is determination. We should be determined. Okay, तो क्या होता है ना, sometimes you feel sick, sometimes your family फ्रेंड्स आ जाते हैं, ये फेस्टिवल्स आ जाते हैं बीच बीच में. देर आर मैनी रीजन्स. अगर इफ़ वी नीड एक्सक्यूजेस गाइज, देर आर n नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस to not study, to not follow a timetable, to not follow a schedule. But if you are determined, then no excuse can deter you. Hence ये determination होना ज़रूरी है. And then the next thing that is needed is commitment. बी वेरी कमिटेड टू इट. ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, डोंट डू अ थिंग इफ़ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट. बट इफ़ यू चूज़ अ थिंग, डू इट विद ऑल योर हार्ट. पूरे दिल से, पूरे कमिटमेंट से उसे पूरा करो. ओके, सो ये बेसिकली द रीज़न फॉर पुटिंग दिस थिंग्स फॉरवर्ड या रीज़न फॉर शेयरिंग दिस थिंग्स विथ यू इज़ दैट ये एटीट्यूड पहले डेवलप कर लो. वॉट यू आर इज़ इन योर ब्रेन, राइट. तो आप पहले ये एटीट्यूड डेवलप कर लो. वंस दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स डेवलप्स, यू आर मेंटली रेडी एंड टफ फॉर द एग्जाम. ओके, फिर हमें क्या करना है, देन द नेक्स्ट थिंग्स टू डू इज फर्स्ट तो हमें ये प्लानिंग करनी ज़रूरी है, राइट. प्लान करना है कि एग्जैक्टली हमें कैसे करना है. इफ़ यू फेल टू प्लान,
देन यू आर प्लानिंग टू फेल. ओके, सो प्लान करना बहुत ज़रूरी है. तो कौन से प्लानिंग करना है, पहले तो एक ओवरऑल प्लानिंग कर लो. ओके, टेंटेटिव डेट्स आ गए हैं. सो एक टेंटेटिव डेट्स के हिसाब से हमारे पास कितने डेज है, ठीक है, 60 डे प्लान, वॉट एवर जितने भी डेज है उसका टोटल करके एक टेंटेटिव प्लान बना लो कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू फिनिश माई सिलेबस, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस. आफ्टर दैट यू नीड टू डू अ मंथली, वीकली एंड डेली प्लान. इसका मतलब क्या है कि इस मंथ में आप कौन सा सब्जेक्ट कितना फिनिश करने वाले हो, नेक्स्ट मंथ में आप कितना फिनिश करने वाले हो. देन ब्रेक इट, उसको ब्रेक करो इनटू वीक्स कि इस वीक में इस सब्जेक्ट का इतना पार्ट आई एम गोइंग टू फिनिश. ओके, देन ब्रेक इट इनटू डे. टू फिनिश माय वीकली गोल मुझे डेली एटलीस्ट 2 घंटे इस सब्जेक्ट के साथ बैठना पड़ेगा. ओके, सो ऐसा ये मंथली, वीकली, डेली प्लान होना ज़रूरी है. सी गाइज, this planning is going to take you hardly 10 minutes, but these 10 minutes are very important. ये 10 मिनट आप दो, this 10 minutes are very important for, एक बार आप लोग प्लान कर लेते हो ना, फिर इम्प्लीमेंटेशन ईजी होता है. एटलीस्ट यू विल नॉट बी कन्फ्यूज कि अभी मैं क्या करूँ. ओके, सो ये अच्छे से प्लानिंग करना ज़रूरी है. ऑलराइट, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट मैटर्स इज डेली स्केड्यूल. ये डेली स्केड्यूल जो आपका है डिटेल्ड होना चाहिए. ऐसे नहीं कि यू नो दीज आर द 5 थिंग्स आई एम गोइंग टू डू, हो गया. टाइम टू टाइम स्केड्यूल बनाओ कि ओके आई विल वेक अप एट XYZ टाइम. एक बफर टाइम रखो, 10 मिनट लेट उठ गए, फिर मॉर्निंग चोज जो भी है आई फिनिश इट विद इन 1 hour. ओके, आफ्टर दैट टेक द सब्जेक्ट दैट यू थिंक इज मोर इम्पॉर्टेंट टू यू, ठीक है, बिकॉज मॉर्निंग टाइम में योर ब्रेन इज मोर अलर्ट, तो वो सब्जेक्ट ले लो. देन टेक योर ब्रेक, फिर दूसरा सब्जेक्ट. प्लान ऐसे करो कि आफ्टरनून टाइम में वो सब्जेक्ट लो जो आपको पसंद है. See, when you have 4-5 subjects, we have law, logical reasoning, GK, English. After 12th वालों को, 5 year वालों को cons भी है. So इसमें से there's going to be at least one subject जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप बोर नहीं होते हो. Okay, and there's going to be one subject that you hate but you have to do. तो आफ्टरनून टाइम इज बेसिकली जब आपका खाना पीना हो गया एंड यू फील वेरी स्लगिश या नींद आती है, तो दैट टाइम यू चूज द सब्जेक्ट दैट मोटिवेट्स यू, जो आपको पसंद है. ओके, सो दैट आप वो टाइम वेस्ट ना करो. इफ़ यू स्टिल फील लाइक टेकिंग अ नैप, देन मेक श्योर दैट यू टेक अ नैप. सो ये स्केड्यूल जो है ना गाइज, इट इज़ डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. सी, सम पीपल आर अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स, कुछ लोग नाइट आउल रहते हैं. Some people can get up early in the morning and study very nicely. Some people can stay all night and study very nicely. आप कौन सी टाइप हो ये सिर्फ आपको पता है. Figure it out. अगर नहीं पता है तो कुछ दिन के लिए कुछ प्लान करो and try to figure out. Are you more active early in the morning or can you just be very active and focus late in the night? Figure it out. Do you need a nap in the afternoon? Will it make you more energetic? या do you just tend to take a nap and sleep for the next 2-3 hours? Figure it out. What is your type? ये figure out करो, उससे आपका planning बनेगा. So your first 5-10 days are going to be practice. मतलब आप टेस्टिंग, ट्रायल एंड एरर करने वाले हो खुद के साथ. बट वंस यू डू दैट, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट पैटर्न सूट्स यू, व्हाट टाइम फ्रेम सूट्स यू. कुछ लोग 2-3 घंटा, 4 घंटा एक साथ पढ़ाई के लिए बैठ सकते हैं. Some people can just sit and focus for 45 minutes. तो प्रोमोडोर टेक्निक होती है, you know, मतलब 25 minutes focus study, 5 minute break, 25 minutes focus study, वो ट्राई करो. So figure out what exactly suits you and make this planning. Once this planning is done, you have to follow the planning with commitment. Now यहाँ पे one important thing that comes is real refreshing breaks लेना ज़रूरी है. मैंने इसके लिए एक separate pointer बनाया है, ऐसे ही नहीं, because these breaks are very essential. अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं I will not take a break, I will just study at a stretch, ऐसा नहीं होता. See, our brains are not computers, right? कि हम continuous चलते रहे. You need a break, you need to refresh it. तो these breaks are equally important. बट क्या होता है, when you take breaks you usually tend to open your Instagram account, your Facebook, you tend to watch Netflix, या किसी के साथ झगड़ा कर लिया. Don't do that. ये आपको डिप्लीट करते हैं. ध्यान दो what things give you energy and what depletes you. टेक ब्रेक्स जो आपको एनर्जाइज करे. तो रिफ्रेशिंग ब्रेक्स क्या होते हैं, तो हमारे डेली चोर्स कर लिए, ठीक है, जैसे कुछ खा लिया, लंच कर लिया, नहाना धोना. Then some quality time with your family or a good phone call with your friend that actually energizes you will also be a good refreshing break.
ऑल्सो डू द फील गुड एक्टिविटीज़. वॉट एक्टिविटीज़ मेक यू फील गुड? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू एन्जॉय लिसनिंग टू सॉन्ग्स, डांसिंग और रीडिंग अ नाइस नॉवल. वो करने के बाद आई नेवर फेल्ट डिप्लीटेड, अभी थक गई नहीं, आई फेल्ट मोर एनर्जाइज. तो आप ये ब्रेक्स लो जो आपको एनर्जाइज करते हैं. एंड ऑफकोर्स फिजिकल एक्टिविटीज़ आर ऑल टाइम वेरी नाइस. गो आउट ऑफ द हाउस, गो आउट इन सनलाइट, एकदम चुपती जलती गर्मी में नहीं, नॉट इन द आफ्टरनून, बट मॉर्निंग सनराइज में या इवनिंग सनसेट देखने चले जाओ, और गो साइकिलिंग, गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक. These things will make you energized. Okay, तो ये ब्रेक्स जो होते हैं ना, दे आर अ बिग कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर. ये ब्रेक्स आपको ज़्यादा आपका फोकस बढ़ाते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 घंटे का ब्रेक ले लिया. टेक लिमिटेड ब्रेक, 15 minutes, maximum 20-25 minutes after a big session, but don't skip these breaks and take these refreshing breaks. Okay, now once you have planned, once you have taken your breaks, आपका schedule वगैरह अच्छा जा रहा है, एवरी पॉइंट पे आपको ये रियलाइज होगा कि अभी कुछ बदल रहा है. जैसे कि व्हेन यू स्टार्टेड यू वर वीक विद अ सब्जेक्ट, नाउ यू हैव गेन कॉन्फिडेंस इन दैट सब्जेक्ट, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करना ज़रूरी है. सो ये हमेशा होता है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू रिव्यू, एनालाइज एंड रीप्लान. यू कैन कीप अ संडे फॉर दिस, और जैसे आपको ठीक लगे, एवरी इवनिंग, एवरी 3 days इज़ ऑल्सो ओके, लेकिन एटलीस्ट वीक में एक बार तो आपको ये करना ही है. यू हैव टू रिव्यू योर प्लान कि आपने क्या प्लान किया था, क्या हुआ है, what things have been successful, if they have not been successful, what is the reason कि वो successful नहीं हुए, कहाँ पे आप कम पड़ गए, या what is not going right in your schedule. ये सब आपको रिव्यू करना है, खुद का ही प्लान, खुद के ही एक्शंस आपको रिव्यू करने हैं, एंड देन एनालाइज इट. ओके, फाइंड आउट अ सोल्यूशन कि इस पे आप क्या कर सकते हो. इज देयर समथिंग, क्या आप ज़्यादा ही टाइम बैठ रहे हो पढ़ाई को एंड देन यू आर फीलिंग ड्रेन्ड, और आर यू टेकिंग टू लॉन्ग ब्रेक्स, are you going well with a subject and now you need to reduce the time, or are you feeling still not very confident about a subject and you need to give it more time. ये पूरा आप एनालाइज कर लो एंड वापस रीस्केड्यूल या रीप्लान कर लो. एंड दिस यू हैव टू डू एवरी वीक और एवरी 3-4 days एज यू डीम फिट. इफ़ यू फॉलो दीज स्टेप्स, ठीक है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा. See, so basically what you need to do is you first need to have a vision, you first need to have a willpower to actually get into it. आपको क्या चाहिए ये क्लियर करो, and after that sketch out a very nice plan for it and follow it with commitment. Guys, अगर आप ये सब कर रहे हो then no one can stop you from getting into GLC or cracking MH Law CET with really great marks, because this exam is made for students like you. तो ऐसा नहीं है that it's not possible, सिर्फ हम कहीं पे कम पड़ जाते हैं. तो if we are able to cope with that, if we are able to be strong through that, then we can make it possible. So that's all for this part 1. We will meet in part 2. Until then, if you are preparing for law entrance exams of 2022-2023, then you can contact us. We provide live classroom coaching, books, mock tests, mentorships. We also provide classroom coaching, and our centers are at Borivali, Vasai, Dadar, or you can opt for our online and live class sessions. You can visit our website and follow our social media handles. All the links are given in our description below. So keep studying and let's meet in the next video. Until then, bye-bye.